Good morning, students. So, beta, today we are going to attempt the last problem from the sheet, that is question number 11. Children, this problem is also from the board examination. The year is given as 2011. Okay, so now look at the problem. All of you have tried the problem very well, children. Okay, so now look at the correct answer. So you have gone through the problem, so you know that what you have to do in this. Okay, so the name of the class is given as concat and having two data member st and len, and then four or five member methods are there. Okay, four methods or five methods are given there. That first one is concat. This is the constructor to initialize the data member, then read string to input a sentence with a full stop, and then string longest, which returns the longest word in the string st, and then void concatenates the longest word of the objects a and b. Okay, and then a method to print the resultant string. Okay class, so it is told in the problem ki means we have to input two sentences. Okay, and then we have to find out their largest words from both the sentences and add them and to store them into a third object of the same class, and then print the results. Okay, so class, look at the answer now. uh, the name of the class is given as concat. Give a blank space here, then string st, which is the data member to store the sentence, then integer length. The constructor of the class is given, that is concat, which initializes both the data member with their default value. So you know that the first variable, first data member st, is of string type, so it will be initialized with null, and len is of integer type, so we are initializing it with 0. Then next method is void read string, which takes the input of a sentence. Okay, so the first part is very easy one. Now we go to the second sheet of the same problem. In this problem, sorry children, in this part, look, the first method is given string longest, which finds the longest word from the given sentence and returns that word. Then void concat is there. To display the string, we have one method, that is void display. And then in the main, children, we can see that all the job is done. So children, we are directly starting with the main method. Okay, so you know concat a equal to new concat. So children, first of all, you have to create one object of the uh, concat class named with a. तो सपोज हमने ये a नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और a के पास क्या होगा बेटा, एक ये वेरिएबल होगा st और एक क्या होगा len. ठीक है ना, तो ये दो यहाँ पे इसके पास डेटा मेंबर होंगे. ठीक है, फिर हमने कहा कॉनकैट बी इक्वल टू न्यू कॉनकैट, एक बी नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्रिएट कर लिया. ठीक है, बी के पास भी दो चीज़ें होंगी, एक तो एस टी और दूसरा होगा इसके पास लेन. ठीक, और फिर कॉनकैट आर इक्वल टू न्यू कॉनकैट. बेटा ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ये क्यों है, टू स्टोर द रिजल्ट. तो आर के पास भी दो चीज़ें होंगी, एस टी और लेन, और आपको पता है ये जितने भी मेंबर मेथड हैं ये सारे ऑब्जेक्ट के पास होंगे. ठीक है, और ये केवल उसी ऑब्जेक्ट की बॉडी से कॉल होंगे जिस ऑब्जेक्ट के नेम के आगे आप डॉट लगा के मेथड को कॉल करते हैं. ठीक है, तो अब इसके बाद आइए देखिए मैंने क्या कहा, ए डॉट रीड स्ट्रिंग. ठीक है, ए डॉट रीड स्ट्रिंग यानी कि बेटा ए वाला जो रीड स्ट्रिंग मेथड है वो चलेगा, और ए की एस टी में यानी सेंटेंस में आपसे एक एंट्री ले लेगा. तो सपोज मैंने क्या इनपुट कर दिया, जावा इज फन. ठीक है, एंड फुल स्टॉप. आपको याद है ना क्या बोला है प्रॉब्लम में कि यू हैव टू इनपुट द सेंटेंस अलोंग विद द फुल स्टॉप. फिर मैंने क्या बोला, बी डॉट रीड स्ट्रिंग मेन में बोला गया है, बी डॉट रीड स्ट्रिंग यानी कि वही सेम मेथड जो रीड स्ट्रिंग वाला है वो बी की बॉडी में चलेगा और बी के सेंटेंस की एंट्री ले लेगा. तो जैसे मैंने यहाँ क्या इनपुट कर दिया,
ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है, और एक फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे ए ओ बी नाम के कॉनकैट क्लास के दो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किए और दोनों के में एक एक सेंटेंस की एंट्री कर दी और ये अपने अपने डेटा मेंबर में एच में जाके स्टोर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस के जो लॉन्गेस्ट वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चेक करिए, पहला सेंटेंस है जावा इज फन, इसमें सबसे लंबा कौन सा वर्ड है, जावा है। और बी में ऑब्जेक्ट इज रियल, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें इन दोनों के जो लॉन्गेस्ट वर्ड हैं इनको निकाल के ऐड करना है थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो आर वाला है इसके सेंटेंस में। और आर का जो एस टी है वो क्या है, अभी बेटा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि दोनों सेंटेंसेस के लॉन्गेस्ट वर्ड निकाल के ऐड करने के लिए हमें कौन सा मेथड दिया गया है, वॉइड कॉनकैट, ठीक है। तो वॉइड कॉनकैट याला मेथड हम कॉल करेंगे और कॉनकैट ए एंड कॉनकैट बी, ये जो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इसको हम क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है प्रोग्राम की वो ये है, हमने यहाँ पे क्या बोला, आर डॉट कॉनकैट, यानी बेटा आर को आपने क्या बना लिया, तुरंत यहाँ पे अपना करंट ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। आर हो गया मेरा करंट ऑब्जेक्ट और फिर आपने क्या किया, इसमें ए एंड बी को पास कर दिया। तो ये देखिए ए भी आ गया और ये बी भी आ गया। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, ए के नाम से और बी के नाम से। और आपको पता है ना ये ए के पास अपना एस टी होगा और बी के पास अपना वाला एस टी होगा, यानी दोनों अपने अपने सेंटेंसेस लेके आएंगे किसकी बॉडी के अंदर, आर की बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब जरा ये वाली लाइन जरा चेक करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, और देखिए ये वाला बहुत ही शॉर्ट मेथड है, एच टी इक्वल टू ए डॉट लॉन्गेस्ट प्लस बी डॉट लॉन्गेस्ट, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे ए का सबसे लंबा वाला सेंटेंस, सॉरी सबसे लंबा वर्ड चाहिए और बी का भी लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए। तो अब इस लॉन्गेस्ट वर्ड को निकाल के रिटर्न करने के लिए आपको पता है कि एक और मेथड है हमारी क्लास के अंदर, क्या नाम है इसका, स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो पहले मुझे ए का लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए, तो आप क्या करो, ये लॉन्गेस्ट वाला जो मेथड है ये कॉल करो, ये क्या करेगा, पूरे सेंटेंस में से जो भी लॉन्गेस्ट वर्ड है वो आपको फेच करके कर देगा रिटर्न। ये देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एल एन जी, ठीक है। ये कैसे काम करेगा मैं आपको एक यहाँ पे एक जो है ऑब्जेक्ट पे करके दिखाता हूँ। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए डॉट लॉन्गेस्ट, बेटा यानी कि ये वाला जो मेथड है लॉन्गेस्ट वाला ये कहाँ चलने वाला है, ए की बॉडी में, ठीक है। ये है आपका ए, तो ये ए की बॉडी में चलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है यहाँ पे हमने, एस टी इक्वल टू एस टी डॉट सब स्ट्रिंग जीरो कॉमा एस टी डॉट लेंथ माइनस वन। तो ये जो सब स्ट्रिंग है आपको पता है ना क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस के सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो आपने कहाँ से कहाँ तक फिच कराया, जीरो से लेके एस टी डॉट लेंथ माइनस वन। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड हमने इनपुट किया था वो क्या था, जावा इज फन एंड फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब जो इसकी पहले जो टोटल लेंथ है वो ज़रा चेक कर लीजिए। इसकी बेटा जो टोटल लेंथ आई है वो कितनी आई है, 12 आई है, ठीक है। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यानी कि सेंटेंस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके 0 से लेके 11 तक लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या बोला, एस टी इक्वल टू एस टी डॉट सब स्ट्रिंग जीरो से लेके एस टी डॉट लेंथ माइनस वन, जीरो से लेके 11 तक फेच कर लीजिए। तो आपको पता है ना क्या करेगा, जब आप इसको जीरो से 11 बोलते हो तो वो खाली जीरो से लेके 10 तक का पार्ट फेच करेगा। तो क्या होगा, ये 11th वाला पार्ट छूट जाएगा। यहाँ पे है क्या, 11 पे फुल स्टॉप, यानी आपको पता है ना ये जो फर्स्ट लाइन है ये क्या कर रही है, सेंटेंस से फुल स्टॉप को ड्रॉप कर देगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया बेटा, सेंटेंस को के ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई किया, कौन सा, एस टी डॉट स्प्लिट। और इसके और क्या हुआ यहाँ पे, और जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ से आपका ये सेंटेंस डिवाइड होके एक वर्ड नाम के एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा एक वर्ड नाम का यहाँ पे एरे बन गया, ठीक है। और ये आपका सेंटेंस जो है
आपको पता है जहाँ जहाँ ब्लैंक है तो 4 पे और 7 पे दो जगह से ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा जावा H1। ठीक है, तो आपको पता है कि इस एरे में 3 इंडेक्स बनेंगे 0 1 2। फिर हमने जीरो से लेके WD डॉट लेंथ, यानी कि जीरो से लेके आपको पता है कि वर्ड की लेंथ 3 है, तो जीरो से लेके 2 तक लूप चलेगा। और क्या करेंगे हम, वर्ड एक्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन LNG डॉट लेंथ। हमने एक LNG नाम का बेटा यहाँ पे वेरिएबल लिया है विच विल स्टोर द लॉन्गेस्ट वर्ड। तो वर्ड जीरो डॉट लेंथ वर्ड, तो अब आपने ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ है LNG। ठीक है, LNG की वैल्यू कितनी है, नल। तो अब आप सबसे पहले x की वैल्यू जीरो है तो वर्ड जीरो की लेंथ कंपेयर करिए जावा, क्या LNG की वैल्यू से इसकी लेंथ ज़्यादा है, यस। आपको पता है जावा की लेंथ 4 है और LNG की लेंथ जीरो है। तो एक काम करिए LNG इक्वल टू वर्ड x, तुरंत बेटा जो LNG की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जावा हो। ठीक है, जावा स्टोर हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, इसके बाद x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो गई। क्या वर्ड 1 की लेंथ LNG की लेंथ से ज़्यादा है? क्या बेटा इज की लेंथ जावा की लेंथ से ज़्यादा है? नो। ठीक है, तो अब की बार कोई चेंज नहीं होगा। फिर आगे चलिए x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू, ठीक है, 2 हो गई। तो वर्ड 2 की लेंथ क्या LNG की लेंथ से ज़्यादा है? क्या बेटा फन की लेंथ जावा की लेंथ से ज़्यादा है? नो। आपको पता है फन की लेंथ 3 है, जावा की लेंथ 4 है, तो देयर विल बी नो चेंज। और फिर ये लूप आपका टर्मिनेट हो गया। बाहर आइए, रिटर्न LNG और लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर दीजिए। तो आपको पता है कि क्या स्टोर है इस समय LNG में, जावा स्टोर है। तो देखा हमने क्या किया बेटा, हमने पूरे सेंटेंस को 3 पार्ट में यानी एक एरे में कन्वर्ट किया और फिर हर एक वर्ड को मैंने LNG से कंपेयर कर लिया और सबसे लास्ट में मेरे पास क्या बचा, LNG में लॉन्गेस्ट वर्ड, और यही मैंने कर दिया रिटर्न। कहाँ हो जाएगा रिटर्न, जहाँ से आपने कॉल किया था। तो ये देखिए, ये जो ए डॉट लॉन्गेस्ट है ये क्या लेके आएगा अपने साथ, जावा लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस और फिर आपने कहा बी डॉट लॉन्गेस्ट। बेटा यही वाला जो सेम मेथड है आपका लॉन्गेस्ट वाला, ये बी की बॉडी में चलेगा। बी की बॉडी में कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट इज रियल, तो वही सेम ऑपरेशन होगा। ठीक है बेटा, फिर से हम लोग वही सेम ऑपरेशन करेंगे और क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट इज रियल, द होल सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड इट विल आल्सो फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वर्ड। तो ये जो लॉन्गेस्ट वर्ड यहाँ पे करेगा रिटर्न, वो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ए का लॉन्गेस्ट वर्ड मिल गया, बी का लॉन्गेस्ट वर्ड मिल गया, जावा एंड ऑब्जेक्ट, और फिर बेटा ये दोनों ऐड होंगे और ऐड होके कहाँ स्टोर हो जाएंगे, ST में। अब देखिए सोचने की बात ये है कि ये कहाँ का ST होगा। तो आपको याद है ये जो कॉनकेट वाला मेथड है ये कहाँ चल रहा है, ये आपका थर्ड ऑब्जेक्ट जो R, देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा था, R डॉट कॉनकेट। ठीक है ना, तो ये R की बॉडी में चल रहा है, यानी ये जो ST होगा ये R का होगा। तो ये जावा प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों वर्ड ऐड होके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके R के ST में स्टोर हो जाएगा। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लीजिए A से, B से और R से। तो A अपने आप पूरा सेंटेंस प्रिंट कर देगा, जावा H1। B डॉट से फिर आपने डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल किया, ये क्या प्रिंट कर देगा, ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, और फिर हमने R डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया और ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रिंट कर देगा, जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपके ये तीनों आंसर प्रिंट हो जाएंगे और साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है ये भी ओवर हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऐसी बोर्ड्स की और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।